Okay, good morning, students. Welcome to Mission Navodaya Academy. On Jawahar Navodaya paper 2022 set G explanation we will be taking now. So let us start the explanation. First section is mental ability test. So in this first part was there are 4 question figures A, B, C, D have been given in each question and other 4 figures. Okay, so 3 figures are similar in some way, 1 figure is different. Okay, so we have to find out that different figure. So first question, answer is C. Okay, second question, answer is B. Third question, answer is D. And fourth question, answer is C. Okay, so these are the 4 questions in first part. Okay, so second part was similar figure. Find out the same figure. Okay, so clearly answer is A. Six. Option number D is correct. 7. Option number B is correct. And 8. Option number A is correct. Okay. So these are the 4 questions in part 2. Now next. So part 3rd is find out the missing part. Okay, from the question figure, missing part. So let us zoom it all. Okay. 9th question, answer is A. 10th question, answer is D. 11th question, answer is B. Okay, and 10th question, answer is A. Okay, so these are the 4 questions in part 3, that is missing part. Find out the missing part from the figure. Okay, this is the set G. Okay, set G. Now fourth part. There are 3 question figure on the left side. Space for the fourth is left blank. Okay, the question figure are in the series. Find out the figure from the answer figure given on the right side, which occupies the blank space. Okay, so three question figures are given. We have to find the fourth one. Okay, so let us start. 3 क्वेश्चन फिगर हमको दिए है और जो चौथा जो स्पेस उन्होंने क्या किया है, ब्लैंक रखा है, उसमें हमको एक 4th फिगर हमको ढूंढनी है. ठीक है, तो एक कुछ ना कुछ तो इसमें कनेक्शन होता है 3 फिगर्स में, चौथी में भी वही कनेक्शन ढूंढना है और हमको लिखना है. ठीक है, सो अगर ठीक से ऑब्जर्वेशन करेंगे हम तो इसका आंसर हमें मिलेगा बी. ओके, ये जो है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो उस हिसाब से हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा बी. 14 का आंसर मिलेगा हमको बी और 15 का आंसर मिलेगा ए. 16 का आंसर मिलेगा, क्या पूछा है, there are 2 sets of 2 question figures each. The second set has a interrogation mark. There exists relationship between first 2 and last 2. Okay, so we have to select the
राइट आंसर फिगर। अभी इसको ठीक से देखो, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ठीक है, फर्स्ट में क्या कनेक्शन दिख रहा है देखो, square in that triangle and inside the circle। सेकंड फिगर में क्या हो गया है, सर्कल बाहर आ गया और ट्राइंगल अंदर है, और उसको क्या किया है, डार्क किया है। तो थर्ड में क्या है, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल है, तो फोर्थ में क्या आएगा, ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर आ जाएगा। अब ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर आ जाएगा मतलब ये दो तो कैंसिल हो गए, सिर्फ बचे फर्स्ट और सेकंड। उसमें भी पहले इसमें जो ट्राइंगल है वो जो क्या है, डार्क नहीं है, और पहले इसमें जो सर्कल था वो भी इधर क्या था, डार्क नहीं था, तो ट्राइंगल डार्क हो गया था। इधर क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर है वो हो जाएगा डार्क। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नाउ 18th क्वेश्चन, 18वां जो क्वेश्चन है उसमें ठीक से अगर देखोगे, बस इसमें स्क्वायर और अंदर जो 4 मल्टीप्लिकेशन के सिंबल है, में ट्राइंगल तो कितने आने चाहिए इधर, 3 आ जाएंगे, मतलब बी इज द करेक्ट। ये 19th क्वेश्चन क्या है, देखो इसको, ये जो बच्चा दिखाया है आदमी, ठीक है, इसको 2 हाथ और पैर दिखाया है, अगले जो अगली फिगर है उसमें क्या हो गया है, इधर ये ऐसे साइन आ गए इसको। थर्ड में जो मिली हमको फिगर सेम हो जाएगा उसको भी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए डी। क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, उसके बाद 20 का जो मिल जाएगा आंसर, अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो बीच में जो प्लस साइन बनता है वो इधर दिखाया गया है, तो यहाँ पे जो साइन बना है इन्वर्टेड वाई, वो मिल जाएगा हमको सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, सो सेकंड इज द राइट। ओके, सेकंड इज द राइट। ठीक है, हाँ नेक्स्ट 20 पार्ट 6 क्या है, देर आर one part of geometrical figure, that is triangle, square and circle is on the left side as a question figure, and other one is among the 4 question figure A B C D on the right side. So we have to complete the geometrical figure, by joining the given part. Okay, so first में जो है ठीक से देखोगे आप तो आपको पता चलेगा ये, this shape we have to find first of all. So we have here, okay, so answer is C, आंसर इज सी। ठीक है, नाउ सेकंड, triangle is missing, so that's why we have this triangle here. Okay, ये ऑप्शन। और 23 में ये ऐसा पार्ट कहाँ पे मिलेगा हमको, तो देखो यहाँ पे ये अपने को मिल जाएगा ऐसा पार्ट। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ 24, हाँ 24, so this type of symbol we can find out here. Okay, so C is correct, 24 का C। नेक्स्ट पार्ट 7, हाँ डायरेक्शन क्या है, there is a question figure on the left side and 4 answer figure is given on the right side A B C D. Okay, select the answer figure which is exactly mirror image of the question figure. Mirror image, question is mirror images. Okay, so mirror image देखना है हमको अभी इसमें। हाँ, so आपको दिखाई दे रहा होगा 25 में क्रॉप लिखा है, क्या लिखा है, क्रॉप। सो क्रॉप जो है P आ जाएगा पहले तो यहाँ पे, वो भी कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा।
तो पहले पी, फिर उसके बाद ओ, फिर आर और सी। तो इस तरह की जो फिगर है वो सिर्फ हमें एक जगह पे दिखाई देगी और वो है बी। कौन सा है? बी, राइट। 26, 26 और लेफ्ट साइड हो जाती है राइट साइड, सो ये करेक्ट। ओके। 27, अगर ये राइट में टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ है, तो वो हो जाएगा लेफ्ट में टिल्ट, मतलब लेफ्ट साइड में झुका हो जाएगा। ठीक है। तो क्या मिलेगा? ये सी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? सी। ठीक है। ओके। अगर ये लेफ्ट में है तो राइट में हो जाएगा, मतलब ऐसा था तो ये मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, मिल गया हमको थर्ड में। ओके, नाउ 28। 28 अपोजिट हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ओके, बी इज राइट। ओके, नाउ नाइन्थ पार्ट, दैट इज 29 to 32 क्वेश्चन नंबर। इसमें पहले डायरेक्शन देख लेंगे हम। क्या है? A piece of paper is folded and punched as shown in the question figure on the left side of the four answer figures. Now, how the paper will appear when open or unfold the paper? Folding and unfolding. Okay. Okay. Folding and unfolding. हाँ। सो हमने क्या बताया था आपको? इस तरह के सिंबल देखना है कौन से फिगर में दिखाई देते हैं। तो ये जो दिखाई देगा हमको, बस ए में दिखाई दे रहा है ठीक से। ठीक है, राइट। सो ए विल बी द करेक्ट। नाउ 30, इस तरह की जो सिंबल है कहाँ पे दिखाई देगा? और ए में आ जाएगा, तो ये उसका आंसर हो। नाउ 31 और 32। हाँ, सो इस तरह की सिंबल और कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सी में। ठीक है, एक डॉट और आधा, ये जो ट्रायंगल है ना, ये मिलके बन जाता है अंदर डायमंड। करेक्ट। उसके बाद ये साइन हमें दिखाई देगा सी में। राइट, देखो ये एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। ठीक से आप इसको ऑब्जर्वेशन, आपके पास जो पेपर है उसमें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, पार्ट 9। क्या दिए है डायरेक्शन? विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द कट आउट पीसेस। पार्ट जोड़ जोड़ के हमको एक बड़ी फिगर बनानी है, राइट। सो इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग द कट आउट पीसेस। ओके, सो बहुत ही आसान पार्ट है। कि क्या करो, छोटे छोटे जो टुकड़े सबको नंबर दे दो और फिर चेक करो। तो इसमें जो है ज्वाइन करने के बाद हमको मिल जाएगी इस तरह की फिगर। ठीक है, 34 में 4 स्क्वायर ज्वाइन कर देंगे तो मिल जाएगा बी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इस सबको जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर। 36 में 3 ट्राइंगल है, तीनों अगर जोड़ दिए
तो ये जो बी ऑप्शन है करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द 9th पार्ट। ओके, अब ये लास्ट वाला बचा है 10th पार्ट। क्या डायरेक्शन दिए है? हाँ, हिडन और एम्बेडेड फिगर, मतलब छुपी हुई ढूंढनी है। ओके, हिडन फिगर, वी हैव टू फाइंड आउट हिडन फिगर। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, माइन्यूट डिटेल दिए। ओके, 1 मिनट, थोड़ी सी साइज में इसको क्या कर लेता हूँ, छोटी साइज कर लेता हूँ, तभी आपको ये ठीक से समझ आएगा। ओके, दिस दिस एंड दिस। ओके, देखो मिल गई। सो ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन डी, उसके बाद ऑप्शन सी, उसके बाद ऑप्शन ए। ओके, सो इस प्रकार से जो 40 क्वेश्चन थे हमने वो देख लिए। ठीक है, सभी के आंसर दिए हैं। ऑब्जर्वेशन पेपर में ठीक से करना है, चेक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैथमेटिक्स का एक्सप्लेनेशन हम अभी देखेंगे। ठीक है, सो मैथमेटिक्स में क्या है, 20 क्वेश्चंस हमें दिए थे, बहुत ही आसान पेपर था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर ठीक से आपने रिवाइज किया है, ठीक से वहां पे एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अगर सॉल्व किए, तो इसके सभी के जवाब मिलना लगभग पॉसिबल था। ठीक है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं था। चलिए, तो वन बाय वन हम देखते हैं। पहले तो इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन आप देख सको। ठीक है, तो सेट जी है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, सेट जी के मैं ले रहा हूँ। 41 क्वेश्चन इसमें था, डिक्रीज ऑफ 20% ऑन द प्राइस ऑफ अ साइकिल इंक्रीजेस इट्स डिमांड बाय 20%, द इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ द शॉप इज। अगर हम 20% प्राइस, साइकिल की प्राइस 20% कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, और उसके वजह से 20% साइकिल की जो सेल है उसमें अगर इंक्रीज हो जाता है, ओके, इफ वी डिक्रीज द प्राइस ऑफ साइकिल बाय 20% एंड द इफेक्ट ऑफ दैट विल बी 20% इंक्रीज इन द सेल, मतलब लोगों की खरीदारी में बढ़त हो जाती है ना। प्राइस अगर डाउन हो गई तो लोगों ने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया साइकिल को, तो इसका जो इफेक्ट है उस शॉप पे क्या होगा, उसने 20% तो प्राइस कम कर दिए, सेल तो उसकी 20% बढ़ गई है, लेकिन जो इफेक्ट है, अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका था। मैं इसको अभी क्या कर देता हूँ, वन साइड में कर देता हूँ, पेपर देख लो। हम्म, ओके, सो 20% डिक्रीज मीन्स 80/100 लिख सकते हैं हम उसको, मल्टीप्लाइड बाय 20% इंक्रीज इन सेल, मतलब 120 डिवाइडेड बाय
100, इसको अगर सॉल्व करोगे 2 0 कैंसल, 12 8 जो 96 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब हो रहा है 4% डिक्रीज, 4% डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? 4% डिक्रीज। ठीक है, 4% डिक्रीज इन द सेल ऑफ द, डिक्रीज जो प्रॉफिट हो जाएगा उसका, उसमें 4%, तो क्या बोलते हैं उसको हम, लॉस हो जाएगा उसका। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 4% डिक्रीज। ये देखो, हाँ, सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था। ए, 4% डिक्रीज। ओके। सेकंड क्वेश्चन देख लो। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12 होल 1/16, 12 होल 1/16 का डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, ओके, सो 12 होल 1/16 ना, सो 12 तो कंप्लीट है, राइट? 12 तो कंप्लीट है। जो इनकम्प्लीट है मतलब 1/16, उसको क्या लिखते हैं हम, या आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो इसको, 12 होल 1/16, 12 तो पूरा लिख लिया आपने, और 1/16 जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। 0, राइट, यहाँ पे 0 आ गया, फिर और एक बार डेसिमल देखिए 0, फिर हो गए 100, राइट? पहले एक को 0 का, फिर 10 को और 0 का, और अब 100 हो गया। तो 16 6 जा 96। ठीक है, 4, 16 2 जा 32, तो 8, 16 5 जा 80। क्या आ गया? 0.0625। तो अपना आंसर मिलेगा अपने को, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12.625, 12.625। ओके, 12.625। हाँ, सो ऑप्शन सी। सी, 12.0625। ओके, उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 8। यही क्वेश्चन, 20 divided by 5 divided by 2 plus 16 divided by 2 into 2 plus 10 divided by 5 into 3 plus 2। सो ये सिंप्लीफिकेशन था। ठीक है, क्वेश्चन सबके पास है? हाँ, ओके, तो क्या क्वेश्चन है? 20 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस इन ब्रैकेट 16 डिवाइडेड बाय 8 ब्रैकेट क्लोज
into 2 plus in bracket 10 divided by 5 bracket close into 3 into 3 plus 2. ठीक है, 3 plus 2. हाँ, ओके. सो डिवीजन और ब्रैकेट बॉडमास रूल, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. सो ब्रैकेट में डिवीजन है 5 20 बाय 5 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, और ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा इंटू 2 प्लस 5 टू द 10 2 आ गया इंटू 3 प्लस 2 इज 5. ओके. उसके बाद डिवीजन पहले तो 2 4 बाय 2 में मतलब 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5. अब मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व हो जाएगा तो 2 4 प्लस 2 फायदा 10. So final answer will be 16. Okay. So 16 was the correct. Okay. 16 is the correct answer of this question. Okay. So 16 is the correct. चलो ये देखो ऑप्शन सी. सी. ठीक है 16. Okay. Now 44. In how many years will rupees 1500 amount to मतलब अमाउंट हो जाएगा कितना 1800 एट 8% पर एनम. रेट दिया है ये 15, ये जो 1500 ये प्रिंसिपल हो जाएगा, 1800 अमाउंट हो जाएगा, रेट हमारे पास है. इन हाउ मेनी ईयर्स मतलब पूछा है टाइम. क्या पूछा है? टाइम. ठीक है. तो हम इसका टाइम अभी ढूंढ लेंगे क्या है. तो चलिए क्वेश्चन है, आप देख सकते हो. राइट. चलिए तो क्या क्या 1500 अमाउंट 1800 रेट 8% and we have to find, okay, we have to find time. क्या है फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 1500, सॉरी पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. ठीक है. क्या निकालना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट. So simple interest or interest is equal to amount minus principal. Amount 1800 minus principal 1500, that is 300 rupees. Okay. 300 rupees क्या है? प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट मिल गया. अभी इस फॉर्मूले में हम वो पुट अप कर देंगे. सो 300 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 1500 into rate is 8%, time we don't know, divided by 100. Okay. Now 0 0 cancel, right? Equal to क्या हो जाएगा? 300 अपॉन 15 into 8. 15 into 8. ओके.
15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 0, राइट. सो 20/8 मतलब 8 2 जा 16, 4 बच गया, राइट. सो तो ये देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो 1/2, ठीक है. 1/2 मतलब 2.5 years, 2.5 years, ठीक है. क्या आ जाएगा आंसर? टाइम इज 2.5 years. ओके. 2.5 साल, 2 साल और आधा और 2.5 years. 20/8 कर दिया मैंने. आप उसको 10/4 कर सकते हैं, उसके बाद में 5/2 भी कर सकते, ठीक है. ओके, फिनिश. ठीक है. नेक्स्ट. हाँ, तो इसका आंसर मिल गया हमको 2.5 years, ऑप्शन सी, ठीक है. क्यूब ऑफ लीड विथ एज 6 centimeter is melted to form 27 equal cubes. Length of the each age of the each small cube is. मतलब आसान था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था. देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको. ठीक है. इस प्रकार के क्वेश्चन हमने देखे थे नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करते टाइम, राइट. नंबर ऑफ टाइल्स टू बी रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ द रूम और हॉल, राइट. तो उसमें क्या करते थे हम? नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है? वॉल्यूम का क्वेश्चन है. क्या है? वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, राइट, वन लार्ज क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स. तो ये मिल जाएगा नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, राइट. सो यही फॉर्मूला यूज करेंगे. नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू number of small cubes is equal to volume of large cube divided by volume of small cube. Okay, volume of large cube divided by volume of small cube. अब नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स दिए है 27 दिए है उन्होंने, और वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब तो उसकी साइड दिए है ×6 वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड और साइड क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब. लेट उसकी जो साइड है वो एक्स है. कितनी है? एक्स. तो x ठीक है. ये मिल गया उसका वॉल्यूम. अब 27 को हम क्या कर देंगे? ये जो है एक्स क्यूब और ये 6 × 6 डिवाइडेड बाय कर देंगे 20, राइट. एक्स क्यूब इधर आ जाएगा, 27 उधर डिवाइड हो जाएगा. अब देखो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर 3 2 जा 6,
3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आखिर में क्या बचा? 2 × 2 × 2 मतलब 8। ठीक है, लेकिन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 है ना, ये मिल गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। सो एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2। और इस सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया क्या? हेलो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, तो एक्स एक्स इज इक्वल टू 2, उसका क्यूब रूट है 8 चा क्यूब रूट काय येतो रे? 2 किंवा 2 चा क्यूब काय येतो? 8, बरोबर का? मग त्याचा क्यूब रूट 2 आला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हम्म 2.00 सेंटीमीटर दिया है उन्होंने. ऑप्शन बी 2.0 सेंटीमीटर. ठीक है, उसके बाद 46. क्या है क्वेश्चन? एलसीएम ऑफ 25, 45 और 75 इज. ठीक है, एलसीएम ढूंढना है. ओके, सो बहुत ही आसान है. 25, 45 और 75. 5 5 5 is 25, 5 9 is 45, 5 15 is 75. Again 5 1 9 3 3 1 3 1 3 1 1 1. ये आ गए इसके कॉमन और अनकॉमन फैक्टर. सो एलसीएम इज इक्वल टू 5 × 5 × 3 × 3. राइट, 25 × 9 225. Okay, LCM is 225. D is the correct. Okay, LCM. Sorry. Okay. So, next. Hmm? 47. 47 का जो क्वेश्चन था वो क्या था? If a room 15 meter long requires 7,500 tiles, each measuring 15 centimeter into 12 centimeter to cover the entire floor, then the breadth of the room is. Okay. चलो इसको अभी ढूंढते हैं किस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है, इसको साइड में ले लेता हूं मैं थोड़ा. चलिए,
ओके, सो क्या फॉर्मूला है हमारा? नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल, वन टाइल। ठीक है, सो नंबर ऑफ टाइल तो दिया है हमें 7500। एरिया ऑफ रूम ढूंढना है, तो उसका सिर्फ लेंथ दिया, क्या दिया है हमें? लेंथ दिया है 15 मीटर, राइट। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 15 इंटू 100 से, राइट। सो 1500, और जो ब्रेथ है उसको एक्स मान सकते हैं हम। मान लिया है ब्रेथ एक्स है, ठीक है। और जो टाइल है उसकी क्या हो जाएगा एरिया, उसकी जो मेजरमेंट है उसका मल्टीप्लीकेशन 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, 15 इंटू 12, ठीक है। अभी 1500 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको अभी आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 15 वन 15, 100 आ जाएगा, राइट। क्या बचा? 100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 12, और इधर है 7500। अब क्या हो जाएगा, एक्स अगर इधर बच गया तो ये 7500 को मल्टीप्लाइड हो जाएगा 12, और डिवाइड हो जाएगा ये 100, ठीक है। समझ में आया क्या? जो मल्टीप्लाइड है वो डिवाइड हो गया, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाइड हो गया। So 0 0 कैंसल, राइट। और 75 इंटू 12, इसका कर दो मल्टीप्लीकेशन, 12 5 6, 60, 0 6 कैरी, 12 7 84 प्लस 6 इज 9, so 90, so 900। x is equal to 900 सेंटीमीटर, राइट। मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 900 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, ये मिल जाएगा 9 मीटर। क्या मिल जाएगा? 9 मीटर, ठीक है। सो इस प्रकार से उसकी ब्रेड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 9 मीटर, ठीक है। 9 मीटर आ गई उसकी ब्रेड। लेंथ थी उसकी 15 मीटर, ठीक है। समझ में आया क्या? अब क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है ए, 9 मीटर। ठीक है, ओके। 48, हाँ 48 क्वेश्चन देख लो क्या था। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर is subtracted from the number, the resulting number is always divisible by। मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार बताया था। अगर इस बार 9 नहीं आया तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। लेकिन उन्होंने वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, फिर वो 9 से डिविजिबल आ गया, ठीक है। तो ये जिसने भी क्लास ठीक से की थी उसको इसका मार्क तो बोनस मिल जाएगा, 1.25 मार्क्स आराम से, ठीक है। फिर भी एक बार तुम आप देख लो सॉल्यूशन। क्वेश्चन का मीनिंग है कोई भी नंबर में से अगर उसके डिजिट की जो सम है वो माइनस कर दो तो जो आने वाला रिजल्टिंग नंबर है वो डिविजिबल होता है किस नंबर से। अब समझो वो है, मैंने 1 और 3 मतलब 13 ले लिया, 13, तो इसकी जो सम है 1 प्लस 3 क्या हो जाता है? 4। अगर मैंने 13 में से 4 माइनस कर दिया तो क्या मिला आंसर? 9। 9 इज डिविजिबल बाय 9 ले सकते हो आप। मैंने 21 ले लिया, सम क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 इज 3, 21 माइनस 3 इज 18, और 18 क्या है? डिविजिबल बाय 9, ठीक है। सो और ये भी बताया था कि हर एक नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होता है। तो अगर
क्वेश्चन में 9 अगर ऑप्शन नहीं रहता तो इसका आंसर 3 आता। क्या आता? 3। लेकिन उन्होंने वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, उसका 9 आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये इसका आंसर आता है 9। वो नंबर जो होता है वो 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पूछा गया था कि क्वेश्चन रिपीट, व्हाट इज द सम ऑफ 6.6, 6.06, 6.006 एंड 66.6006? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार लिया है हमने, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। आसान सा क्वेश्चन था, फिर भी एक बार मैं करता हूँ इसको। सम करनी है 6.6, 6.06, 6.006 और 6.006। ठीक है, सो ये क्या आएगा? 6 प्लस 6 इज 12, 1 कैरी, 4 टाइम्स 6 मतलब 24 प्लस 1 इज 25, 2 कैरी, 2 प्लस 6 इज 8, सो 85.2666। ऑप्शन आ जाएगा इसका बी। ओके, सेट जी में इसका ऑप्शन मिल जाएगा आपको बी। ठीक है, 85.2666। ओके, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, writing 0.0725 in simplest fraction form gives the result। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 0.0725, राइट, 0.0725। अभी इसको देखो, बहुत बार बताया, ऐसा आ गया तो इसको कैसा सॉल्व करना है? नंबर लिख लेना है, कितने डिजिट है डेसिमल पॉइंट के राइट में? तो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 0 दे दो, राइट। कितना आसान है। उसके बाद आपको पता है 25 से डिविजिबल नंबर है, तो कर दो डिवाइड। 25 1 दा 25, 25 2 दा 50, बच गए 22, तो हो गए 225। फिर 25 9 दा 225, इधर 25 4 दा 100, 1 and 2 0, so final answer will be 29/400। ओके, 29/400, जो कि क्लियर कट यहाँ पे ऑप्शन बी में दिखाई पड़ रहा है। समझ में आ गया क्या? ओके, 29/400। चलो नेक्स्ट, ओके, सो ये तो हो गया 50 तक तो सॉल्व हो गया, राइट। उसके बाद देखेंगे अपन 51। करता हूं मैं इसको अभी थोड़ा सा जूम। 51, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर आता है इसका 90। ओके, डायरेक्ट आंसर आता है 90 नंबर से। 2 डिजिट नंबर कितने है? 90। आपने अगर कैलकुलेट किए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। ये देखो 1 से 100 तक कितने हैं? 100 नंबर से पूरे, और 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर माइनस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए माइनस, बरोबर। तो फिर 91 बचने चाहिए थे, लेकिन हमको पता है 100 जो है वो 3 डिजिट नंबर है, तो वो एक माइनस हो, 10 माइनस कर दो तो बच जाएगा 90। कितना बचेगा? 90 नंबर्स है पूरे। ओके, 2 डिजिट नंबर इज हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर? सो देयर आर टोटल 92 डिजिट नंबर्स। कितने?
90। चलो उसके बाद 52 क्वेश्चन। 52 कितनी आसान सवाल पूछ लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2000 और 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। कितना आसान सवाल था ये। इसमें देख लो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये तो दोनों वैसे भी कैंसल है क्योंकि यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 35 है, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर में होना चाहिए, तो ये तो कैंसल है। उसके बाद डी भी कैंसल है, यहाँ पे 4 आ गया, गया खत्म। कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग भी किसको पता था सिर्फ, तो भी सॉल्व कर सकता था वो। 15 और 35 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो खलास सिर्फ जो बचा था ऑप्शन सी, उसमें ही प्राइम नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, सी इज द करेक्ट। फिफ्टी थ्री सिंप्लीफिकेशन, बहुत ही आसान सवाल, नॉट सो डिफिकल्ट, वेरी इजी सिंप्लीफिकेशन। बहुत ज्यादा बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन नहीं पूछे इस बार, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे। फिर भी इसको हम देख लेंगे अभी एक बार, इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। 53 क्वेश्चन है। क्या था देखो, 1/13 इंटू, मतलब ब्रैकेट मतलब इंटू है, ठीक है। 7 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 11 प्लस 2 इंटू 13 ब्रैकेट क्लोज, राइट। सो 1/13 इंटू, ब्रैकेट में भी क्या करेंगे पहले, मल्टीप्लीकेशन। ब्रैकेट में पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, तो ये दोनों कर लो पहले। 7 लिख लेता हूँ, प्लस 2 5 10, 10 इंटू 11 मतलब 110, प्लस 2 13 का 26, राइट। सो 1/13 इंटू 7 प्लस 110 प्लस 26, एडिशन कर लो, वो आ जाएगा 143। 13 से डिवाइड होता है नंबर, 13 1 13, 13 1 13, एक बच गया, 13 1 13। सो आंसर विल बी 11। क्या मिलेगा आंसर, 11, ऑप्शन नंबर सी। 53 में ऑप्शन नंबर सी 11 दिया है, क्लियर कट। यहाँ पे देखो ये ठीक से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी। ये देख लो, ओके, बहुत आसान सवाल थे, वेरी इजी पेपर। लेकिन किसके लिए, मिशन नवोदय एकेडमी के बच्चों के लिए बहुत आसान, ठीक है, सबके लिए नहीं, बस अपने लिए। चलो चलो आगे। 54 क्वेश्चन, देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ, a sum of rupees 600 amounts to मतलब अमाउंट हो जाता है कितना, 720 in 4 years at simple interest. Okay, what will it become in 4 years if the rate of interest is increased by 2%? अगर 2% रेट ऑफ इंक्रीज, इंटरेस्ट जो बढ़ जाता है, तो वो अमाउंट जो है कितना हो जाएगा। तो इसके लिए पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कितना है, और फिर उसको 2% इंक्रीज करेंगे और फिर रिजल्ट निकालेंगे कि अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर समझ में नहीं आया है तो डिफिकल्ट हो सकता था। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल 600, अमाउंट 720 और टाइम 4 years। क्या पूछा है, रेट
पहले तो रेट निकालना पड़ेगा, राइट। सो यूज करो फॉर्मूला। उसके लिए पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 720 माइनस 600। 120 इज द सिंपल इंटरेस्ट। अब फॉर्मूला यूज करो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 120, प्रिंसिपल इज 600 इंटू रेट हमें पता नहीं, रेट टाइम 4 years डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करो। 100 की 0 और 600 की 0 कैंसल। सो 120 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4 इज इक्वल टू रेट डिवीजन। डिवीजन 6 1 6, 6 2 12, 0 4 1 4, 4 5 20। सो रेट इज इक्वल टू आ गया 5%। रेट क्या मिल गया? ओके। अब अगर रेट को हमने 2% इंक्रीज कर दिया, मतलब न्यू रेट विल बी, न्यू रेट 5 + 2 दैट इज 7। 5 + 2 इज 7%। कितना बढ़ जाएगा रे? 2% बढ़ गया तो 7% हो जाएगा। अब ये रेट डालना है और निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल तो 600 ही है, रेट 7 हो गया, टाइम 4 years है, डिवाइड बाय 100। सॉल्व करो। अगर इसको सॉल्व करोगे 0 0 कैंसल, राइट। 6 7 दा 42, 42 2 जा 40, 42 4 जा 168। क्या आ जाएगा? 168। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 168 रुपीज। लेकिन जो हमें पूछा है अमाउंट, सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज 600, सिंपल इंटरेस्ट इज 168। तो मिल गया हमको जवाब 600, 768। क्या आ गया? 768। पहले क्या किया है? रेट निकालने के बाद 2 प्लस उसको 2% से बढ़ा दिया, 7% हो गया। 7% रेट डालने पर मिल गया हमको सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मिलने पे ऐड कर दिया तो मिल गया अमाउंट 768। दिस वाज द योर करेक्ट आंसर। दिस वाज योर करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, वीडियो देख लो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बार बार देख लो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। जो नए यूजर है उसने तो सब्सक्राइब करना ही चाहिए, आगे उसको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है। अगर और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। करेक्ट। ये थोड़ा सा प्रमोशन था। चलिए, इतना बताने के बाद थोड़ा प्रमोशन तो बनता है बॉस। A piece of wire, 2 hole 3 by 4 meter long, broke into 2 pieces. One piece is 5 by 8 meter longer than the other. The length of the longer wire is, okay, क्या बताया है? एक पीस ऑफ वायर है जिसकी जो लेंथ है वो है 2 hole 3 by 4 मीटर। क्या किया? उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया है और एक पीस जो है वो दूसरे से 5 by 8
मीटर से लॉन्गर है, मतलब बड़ा है, एक छोटा है एक दूसरा बड़ा है, तो दोनों की जो है ना उसमें से हमको लॉन्गर वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। जो लॉन्गर है, जो बड़ा वायर है, उसकी लेंथ सवाल था। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, कुछ भी नहीं इसमें ज्यादा। लेकिन फ्रैक्शन में होने से आपको शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस हो सकता है। क्या कर, लेट लॉन्गर वायर इज एक्स मीटर। ओके, समझ में लिए, समझा क्या? लॉन्गर जो वायर है वो एक्स मीटर है, ऐसा हमने कंसीडर कर दिया है। ओके, अब अगर ये लॉन्गर है तो स्मॉल शॉर्टर क्या होगा? शॉर्टर वायर विल बी x माइनस 5/8, राइट? मतलब उससे छोटा है, कितने से छोटा है रे? 5/8 से छोटा है, वो लिख लिया। दोनों की भी मिल गई, तो दोनों की एडिशन क्या आनी चाहिए? जो कि हमको दिखाया है, दोनों की पूरी टोटल लेंथ, मतलब x प्लस, है ना, x माइनस 5/8। देखो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। दोनों की एडिशन क्या चाहिए? दोनों की एडिशन चाहिए हमको 2 होल 3/4 टोटल लेंथ ऑफ द वायर, 2 होल 3/4। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, x प्लस एक्स इज 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, इसको कन्वर्ट टू 8 प्लस 3 इज 11/4। ओके, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी देखो ये 2x इज इक्वल टू, ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा उधर जाके, ये हो जाएगा प्लस 5/8। ओके, अभी ये फ्रैक्शन की थी, चलो बहुत ही आसान। 2x इज इक्वल टू, करो इसको सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। सो ये हो गया 22 प्लस 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज 8, 27/8। ओके, अब 1 मिनट। 2x इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, 22 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8, 27 डिवाइडेड बाय 8। ओके, अब देखो ये क्या हो जाता है जादू, x इज इक्वल टू 27/8 इंटू 2, ये जो मल्टीप्लाई और था इंटू 1/2, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाइड है उधर वो हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा, इधर 2x था, 2 मल्टीप्लाइड था, वो हो गया डिवाइड उधर। अब इसका क्या आ जाएगा आंसर, 27/8 टू द 16, राइट x। सो x इज इक्वल टू 16 1 द 16, 16 1 द 16, बाकी कितना बचा रहे 11, और डिवाइडेड बाय क्या है 16। तो x की वैल्यू मिल गई 1/11/16, और x क्या है, लॉन्गर वायर। तो हमको भी क्या पूछा है, लॉन्गर वायर। ओके, समझ में आया क्या? -5/8 क्यों किया, समझ में आया क्या? बिकॉज वन वायर इज शॉर्टर देन द अदर बाय 5/8 मीटर। हाँ धीराज उगले, येस सर. सर मी समझ, असं केलं, मी दुसऱ्या टाईपने केलं होतं. बरं कसंही कर, उत्तर आलं का? येस सर, हेच आलं. ते तुम्ही सम प्लस ग्रेटर नंबर डिवायडेड बाय 2 केलं होतं ना, तो हा, फॉर्म्युला सांगितलं ना, त्याने केलं होतं मी. अरे बापरे, म्हणजे फ्रॅक्शन मध्ये वापरला का? हो. शाबास, त्याला बोलते दिमाग, वार वा। मी साध्या नंबर साठी सांगितलं, तू फ्रॅक्शन मध्ये यूज केला, वा 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 वा, भारी भारी। चलो ठीक है, बरोबर तो आ गया ना। इम्पोर्टेंट वो है, अगर आपका गलत हो गया तो फिर तो वो बहुत बड़ी ग्रेव मिस्टेक हो जाती, ठीक है। ठीक है, फिर भी आपने ठीक किया। फॉर्मूला भी बताया था, सम प्लस डिफरेंस डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा ग्रेटर नंबर, लेकिन वो फ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, इसलिए मैंने ऐसा समझाया है, ठीक है। तो ये भी आसान है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम था नहीं वैसे।
ओके, बहुत ही आसान था। समझ में आया क्या? खत्म। चलो। चलो, कौन सा क्वेश्चन चालू है अपना? 56। वाह वाह, आ गए, नजदीक नजदीक आ गए। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी, ये खत्म हो जाएगा ये। 56। 1 मिनट। हाँ, 56। हाँ, HCF of 72 180 is 36। Okay, 56. So if the HCF of 72 and 180 is 36, then their LCM is, okay, LCM क्या है? Okay, तो LCM हमें ढूंढना है। क्या था अपना फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या था? HCF into LCM is equal to one number into other number, right? into other number, ये फॉर्मूला यूज करना था। HCF और LCM में HCF दिया है 36, LCM ढूंढना है, LCM लिख लो। one number is 72, other number is 180, so LCM is equal to 72 into 180 divided by 36। so 36 को अगर इसको डिवाइड करें, 36 1 दा 36, 36 2 दा 72, और 2 into 180 means 360। LCM is equal to 360। फिनिश। आसान, एकदम आसान। एलसीएम क्या आ जाएगा? 360। फिनिश। बहुत आसान सवाल, सिंपल पूछ लिया। HCF is equal into LCM is equal to one number into the other number, एकदम आसान सवाल। ठीक है, तो उसका ऑप्शन जो आ जाएगा वो मिल जाएगा बी। 56 में क्या मिलेगा आपको? बी। ओके, ये देखो यहाँ पे
We are very sorry for that. Okay, now, so question number 57. 57 question number. Okay, 1 minute. Smallest 4-digit number when expressed as a product of primes. So we must know which is the smallest 4-digit number. So smallest 4-digit number is 1000. Okay, which number? 1000. So इसमें तो देख लो पहले प्राइम नंबर है कि कितने है। पहले ऑप्शन में 8 आ गया तो गया, जो कि प्राइम नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर अगर रहा तो ही उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकते, वरना नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे 8 आने की वजह से ये ऑप्शन तो गलत हो ही जाएगा, राइट। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में भी 4 आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में तो 10 आ गया तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ में बचा है सिर्फ सी, जिसमें कि पूरे प्राइम नंबर है। और कंफर्मेशन के लिए एक बार आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, जैसे कि 2 × 2 2 × 4 4 × 8 8 8 5 40 40 5 200 200 5 1000। सो ये मल्टीप्लिकेशन भी करेक्ट आ रहा है और सभी प्राइम है, इस वजह से आपका जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा सी। 57 का आंसर सी। ओके, नाउ 58, important question. 58, a train starts at 2 and ¼ बोलते हैं उसको आप PM, मतलब in the afternoon, right? 2:15 PM from a station a speed of 72 km/h. At what time will it reach the other station 90 km away? 72 किलोमीटर के स्पीड से 92 किलोमीटर डिस्टेंस उसको कवर करना है। वो जो कि 2:15 पे निकली थी गाड़ी, कितने टाइम पे पहुंचेगी, ऐसा एक क्वेश्चन है। तो इसको आराम से सॉल्व करेंगे। ओके, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, साइड में कर लेता हूं मैं थोड़ा। ओके, सो पहले तो हम निकाल लेंगे टाइम, या अपना जो लिखेंगे फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। जो बेसिक फॉर्मूला था वो लिख लिया। डिस्टेंस हमारे पास 90 किलोमीटर है, टाइम वी हैव टू फाइंड एंड स्पीड इज 72 किलोमीटर। सो x इज इक्वल टू 90/72 विच गिव्स अस, इसको पहले तो 18 से डिवाइड कर लो। 18 5 90, 18 4 72। ओके, क्या बचा है 5/4 which is equal to 4 1 4, 1 remainder 1/4 hours, right? 1/4 hours मतलब 1 hour 15 minutes, 1 hour 15 minutes, right? इसको हमने अभी क्या मिनट में और आवर्स में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो कितने बजे निकली थी वो गाड़ी? स्टार्टिंग टाइम वाज 2:15, राइट। और ट्रेवल टाइम कितना लगा है उसको? 1:15। ठीक है, सो रीचिंग टाइम क्या मिल जाएगा? दोनों की कर दो एडिशन, 15 + 15 is 30, 2 + 1 is 3, so time will be 3:30 PM in the afternoon। दोपहर में ही पहुंचेगी वो 3:30 पे, मतलब 3:30। ओके, 3:30 in the afternoon।
3:30 पे पहुंच जाएगी गाड़ी। बहुत ज्यादा टाइम हो गया जानता हूँ, लेकिन अभी 2 क्वेश्चन के बाद ब्रेक मिल जाएगा। लैंग्वेज का जो है वो बाद में होगा, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन बचे, उतने ले लेंगे अपन। उसके बाद जो है लैंग्वेज वो बाद में दूसरे सर मिल जाएंगे, वो आपका सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ मैथ और लॉजिकल का हमने देखा है। चलो 59 क्या क्वेश्चन है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स। सिंप्लीफिकेशन करना है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे इस बार। सिंप्लीफिकेशन, इसको देखो 2 होल 1/17 ना, इसको कन्वर्ट कर लिया तो बन जाएगा 35/17, करेक्ट। डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, तो 7/10 का हो जाएगा 10/7, करेक्ट। उसके बाद 1 होल 33, 1 होल 1/33 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 33 1 33 प्लस 1 इज 34/33। अभी इसको आराम से सॉल्व करो। देखो 7 1 7, 7 5 35, राइट। 17 1 17, 17 2 34, ओके। क्या बचा है नीचे? 33, और ऊपर 5 इंटू 2 इंटू 10, मतलब 5 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 33। मल्टीप्लिकेशन करो, 5 10 50, 50 10 100, डिवाइडेड बाय 33। उसको ही अगर ठीक से कन्वर्ट कर लिया तो 33 3 99, 1/33, 3 होल 1/33 क्या आ जाएगा? 3 होल 1/33, ओके। 3 होल 1/33 कन्वर्जन 100 डिवाइडेड बाय 33, 33 3 99, 1 रिमेनिंग, सो 1/33, ये होगा उसका आंसर, 3 होल 1/33, ओके। आसान सवाल खत्म। ओके नेक्स्ट, लास्ट वाला 60 क्वेश्चन। The difference between the length and the breadth of a hall is 23 meter, that is length is greater than breadth. If the perimeter of the floor of the hall is 206 meter, then area of the floor of the hall in square meter is, okay, so square meter में एरिया ढूंढना है। अच्छा चलो, ठीक है। क्या दिया है? Difference between length and breadth is 23. So let breadth x, then length will be x plus 23. Okay, difference 23 मतलब x में अगर मिला दे 23 तो बन जाएगा लेंथ। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, टू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इन ब्रैकेट लेंथ हमने क्या लिए? x प्लस 23, और ब्रेथ क्या है हमारी? x, ठीक है। एडिशन कर दिया है, लेकिन ये दिया है हमें 206, बरोबर। अब 206 मल्टीप्लाइड जो 2 है वो डिवाइड हो जाएगा, और इधर बचेगा सिर्फ x प्लस 23 प्लस x, राइट। ये हो जाएगा 103, और x प्लस x इज 2x प्लस 23, सो 103 माइनस 23, इधर बच गया 2x, राइट। सो ये तो मिल गया 80,
इज इक्वल टू 2x। सो x इज इक्वल टू क्या मिला 80/2 मतलब 40। 80/2 मतलब 40। लेकिन x क्या है, x क्या है, x इज द ब्रेथ, राइट, जो कि मिल गए 40। लेंथ क्या है, x plus 23 is the length which is equal to 40x के अलावा लिख लो और ये 23, तो मिल गया 63। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गए, तो एरिया ढूंढना बहुत आसान काम है। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है 63 इंटू ब्रेथ क्या है 40। मल्टीप्लीकेशन कर दो, 0 एज इट इज, 4 3 12, 2 1 कैरी, 4 6 24 प्लस 1 इज 25, राइट। सो 2520 स्क्वायर मीटर, ओके, स्क्वायर मीटर। आंसर इज 2520 स्क्वायर मीटर, ओके, खत्म।